Assalamu alaikum dear students. Today we are starting with lesson number 9, coordination compounds. Dear student, we are knowing that we go for having ionic bond and we go for having covalent bond. So what is the difference between ionic and covalent? Ionic, complete transfer of the electron, and covalent means sharing of the electron. So we know that in this sharing both of the elements are contributing one electron over here. But today if we talk about this particular coordination compounds, here the coordination covalent bond is formed in which the sharing is done between two particular elements, but the bonding is formed with the help of one element only. It means one element is contributing both the electrons. For example, NH3 and BF3, if this both wants to combine together, there should be electron of NF, that is nitrogen, and boron from the opposite side. But dear student, nitrogen is contributing both the electrons, means nitrogen in the NH3 is known as a donor, wherein BF3 that is known as a acceptor. So if we talk about the particular metals which are deficient with the electrons and which are present in our body, for example, in our body hemoglobin, the complex structure is surrounded with the metal iron, Fe. In plants we go for having chlorophyll, that is containing Mg. Similarly, there is vitamin B, B12, which is having the cobalt as the central metal atom, which is electron deficient. It requires the electrons and there will be somebody who will be giving the electrons over here. Now dear student, we are going to talk about the classification of the addition compounds. Actually these compounds are called addition compounds. So we are having two types of the addition compound, double salt and coordinate compound. Dear student, double salt are the one. For example, Mohor salt is as I give the example, FeSO4, NH4 twice SO4, 6 moles of water. Similarly, we go for having the covalent compound, that is CONH3Cl3. So dear student, the difference between these two particular is one, when you dissolve, that is your डबल सॉल्ट. जब आप डबल सॉल्ट को डिजोल्व करोगे तो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन सभी का टेस्ट मिलेगा. फॉर एग्जांपल मोहर सॉल्ट, तो Fe का टेस्ट भी मिलेगा, एमोनिया का टेस्ट भी मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा सल्फेट का टेस्ट भी मिलेगा. बट व्हेन यू गो फॉर टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स, यू विल नॉट गेट ऑल द टेस्ट. फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड एमाइन, इनका कंबाइन एक टेस्ट मिलेगा, NCl का एक टेस्ट मिलेगा. इसका मतलब क्या होता है, आयंस आर नॉट सेपरेटेड कंप्लीटली इफ यू टॉक अबाउट द कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. ओके, डबल सॉल्ट आर स्टेबल एंड दे आर एग्जिस्टिंग ओनली इन द सॉलिड स्टेट. जबकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कैसे हैं, सॉलिड भी है और सॉल्यूशन स्टेट में भी है. दे एग्जिस्ट इन बोथ सॉल्यूशन ऑल्सो एंड सॉलिड स्टेट ऑल्सो. डियर स्टूडेंट, डबल सॉल्ट में जो आयंस होते हैं दे लूजेस देयर आइडेंटिटी, जबकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स रिटेन्स देयर आइडेंटिटी. डबल सॉल्ट में सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसकी वैलेंसी फिक्स होती है, जबकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका वैलेंसी फिक्स नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं. मतलब इट कैन गो फॉर चेंजिंग द particular, what we can say, their variation states over here. Next we have to study very important theory which is known as Alford-Werner's theory. Dear student, Alford-Werner theory is the one in which the precipitation is taking place. वर्नर ने क्या किया, COCl मतलब कोबाल्ट क्लोराइड और एमोनिया को मिक्स कर दिया और एक कंपाउंड बनाया, दैट इज COCl3NH3. फर्दर जिसको रिएक्ट करवाया Ag के साथ. Ag क्या है आपका, सिल्वर, तो कंपाउंड AgNO3. नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस, जो उन्होंने कंपाउंड बनाया COCl3 उसको उन्होंने ट्रीट करवाया AgNO3 के साथ. तो जब AgNO3 3 मोल्स लिया उन्होंने और रिएक्ट करवाया तो उन्हें प्रोडक्ट मिला 3 टाइम्स AgCl के प्रेसिपिटेट मिले. ये रिएक्शन क्या बता रहा है, दैट ऑल द Cl, जितने भी Cl CO के साथ लगे हुए हैं वो सारे कैसे हैं, फ्री है, वो सारे के सारे कोबाल्ट के साथ बॉन्डेड नहीं है. फिर उन्होंने एक रिएक्शन लिया COCl3 5NH3 और इसको अगेन AgNO3 के साथ ट्रीट करवाया. तो डियर स्टूडेंट, जब ये ट्रीट करवाया तो उन्हें क्या मिला, 2 मोल्स मिले. दिस वाज दैट 2 क्लोरीन्स आर फ्री. डियर स्टूडेंट, देन वी टॉक अबाउट दी कंडक्टेंस. कंडक्टेंस एक ऐसा पर्टिकुलर मेजर है जिससे पता लगाया जा सकता है कि कितने आयंस कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली ज्वाइन है और कितने फ्री स्टेट में है. तो डियर स्टूडेंट, COCl36NH3 जब उन्होंने रिएक्ट करवाया तो रेशियो मिला 3:1. ये 3:1 3 जो थे वो क्लोरीन के थे और CONH3 एक पर्टिकुलर आयन बन गया.
नेक्स्ट COCl3 5NH3, जब इसको भी हमने देखा तो जब इसका कंडक्टेंस देखा तो पता चला कि COCl3 COCl NH3 5 ये पूरा एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बना और आपका जो है Cl2 मिला, इसका मतलब रेशियो इज 1:2. So this is the difference between over there how you can find out the coordinate compounds. Okay, metal, हमारा जो metal है यहाँ पर in this particular compounds are exhibiting two valencies. इसकी दो valencies होती है, primary valency and secondary valency. प्राइमरी वैलेंसी क्या है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कि बार बार चेंज हो सकता है. कभी आप Fe जो है वो +2 में भी हो सकता है, +3 में भी हो सकता है. जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कि आपका मेटल कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होने वाला है, कितने एलिमेंट्स के साथ जुड़ने वाला है, वो नंबर फिक्स रहेगा. सो लेट अस सी, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. ओके, प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होती है, मतलब चेंज होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है? फिक्स होती है. डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी वैलेंसी आपका जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसकी पॉलीहाइड्रा को जज करती है, मतलब कि उसकी ज्योमेट्री कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल होगा या ऑक्टाहाइड्रल होगा. ठीक है. देन वी आर हैविंग वन एग्जांपल ओवर हियर, COCl3 NH36. इट इज गिवन इन द पिक्चर. इफ यू कैन सी, आपके जो Cl है वो डॉटेड लाइन से है और आपके एमोनिया जो है वो बॉन्डेड लाइन से है. डॉटेड लाइन है वो है आपकी प्राइमरी वैलेंसी और जो आपका बॉन्डेड लाइन है वो है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी. तो कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है टोटल? वैसे 6 है. ठीक है. और 3 उसका पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट है. अनदर एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर, दैट इज योर COCl3. वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन. अच्छा डियर स्टूडेंट, एक और पहले एक बात नोट कर लीजिए, आपका जो कोबाल्ट है वो 3 क्लोरीन के साथ डॉटेड लाइन से है, मतलब कि वो जो होता है आयन बन के निकल जाता है. और आपका NH3 जो है वो 6 टाइम्स है टोटल, वो जो है वो फिक्स है, वो ज्वाइन हो गया है आपके कोबाल्ट के साथ, वो सेपरेट होके नहीं निकलेगा. इट इज गोइंग टू रिमेन अटैच्ड ओवर हियर. सो सिमिलरली यू कैन से दैट दोज आर कोबाल्ट और आपके जो 6 NH3 है वो पूरा एक आयन और 3 जो डॉटेड वाले क्लोरीन है वो एक आयन. सो आपका डॉटेड वाला है प्राइमरी वैलेंसी और आपका जो बोल्ड लाइन है वो है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी. सेकेंडरी वैलेंसी कभी चेंज नहीं होती है, बट जो आपकी जो डॉटेड लाइंस है प्राइमरी वैलेंसी जिसको हमने अभी बताया ऑक्सीडेशन स्टेट, वो चेंज हो सकता है. सो यू हैव टू कीप इट इन द माइंड. फर्दर 2 more examples we are going to see it over here, जिसमें हमने कोबाल्ट क्लोराइड लिया है और उसके साथ 5 moles of NH3 लिया हुआ है. जबकि जो तीसरा वाला कंपाउंड है उसमें हमने कोबाल्ट क्लोराइड अगेन लिया हुआ है, बट हमने लिया हुआ है NH3 4 times. So यहाँ पर we are going to see that how the ions are getting आयोनाइजेशन, हमें कैसा आयोनाइजेशन मिलता है और हमें NH3 कैसे अटैच मिलता है. सो वी आर गोइंग टू हैव द 1-2 more examples over here in this particular slide. So dear student, 2 more examples are given to you. COCl3 NH3 5 times. अब यहाँ पे NH3 5 हो गया, 6 नहीं है, मतलब जो कोबाल्ट के साथ 5 NH3 लगे और जो 3 Cl थे उसमें से 1 लग गया, मतलब कि जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था वो 6 ही रहा. बट यहाँ पे आपके आयोनाइज क्लोरीन कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे. ठीक है. सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल में COCl3 NH3 4. अब NH3 4 है, इसका मतलब क्लोरीन कितने अटैच होंगे? जब तब जाके उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेगा. आउट ऑफ 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन्स. यस, सो 2 क्लोरीन्स आर ज्वाइन टुगेदर, मीन्स आपका जो आयोनाइजेबल क्लोरीन है वो कितने हैं? ओनली 1. डियर स्टूडेंट, ओनली 1. एक क्लोरीन बाहर निकलेगा. सो दिस पर्टिकुलर इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस इन नेक्स्ट वीडियो.